इसको फुल स्क्रीन कीजिए तो मैम, एक बार फुल स्क्रीन। हम्म। Good evening, students. Today, in international business, I will be covering some of the topics that are left in Unit 3. So, let's start. The first topic is, change the slide, country evaluation and selection for the purpose of international business. Change the slide. Next slide, please. Yes, the topic name is country evaluation and selection. Let us see. Now, next slide. When you are doing the evaluation of a country for the international business purpose, the things should come into your mind that where should we start, which country to locate or relocate, where to start business from, what are the favorable scenarios are there in that particular country, why to choose a particular country. So regarding all these things, you have to make a very serious study prior to starting a business in a particular country. Let us see. The question is, where should we locate? When a company decides to build a factory with good jobs in China or Poland rather than in the United States, it is effectively voting on the question of which country can best enable its success in the global marketplace. ठीक है जी, चाइना और पोलैंड में अगर बिजनेस वो खोलना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है फैक्ट्री रादर देन यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो उसको देखना होगा. फॉर एग्जांपल, 3M has moved a significant part of its corporate activity, including research and development, to the more temperature climate of Austin and Texas. Toys US has opened a new location in Japan as a part of its global strategy. Disney chose Paris, France for its European theme park, and BMW assembles the Z3 sports car in South Carolina. So why do you think all these companies have chosen, like Disney, BMW, Toys US, and 3M had chosen different countries? Now, in case of 3M, the temperature or climate for their product is suitable in Austin and Texas. Then uh, Carolina Z3 sports car, and they chose Paris and France for European theme park. So for different regions, they are choosing different countries. Next slide. The basics of country selection is, firms must determine the order of country entry. The order of country entry मतलब एक कंट्री में एंटर किए हैं तो वहां से आपका जो दूसरा कंट्री में आप जा रहे हैं उसके आसपास में है, या एक पैसिफिक है, जैसे एशिया पैसिफिक में एक कंट्री ले लिए तो दूसरा कंट्री कितना, ताकि आपका लॉजिस्टिक जो है वो सपोर्ट वहां से मिले, वहां से मैन पावर को आप इजीली वहां से ट्रांसपोर्ट करवा पाए. जैसे हमारे यहाँ क्या है, इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए भी आपको चाहिए वीजा, पासपोर्ट सब चाहिए. लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा है कि आप बस से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू आर इन जर्मनी यू कैन यू कैन मूव अराउंड फ्रांस, इटली, यू कैन गो टू ऑस्ट्रिया without the formalities. Now establish the rates of resources allocation across countries. In selection geographic sites, firms must decide where to market their products, where to produce their. तो ये दो चीज जो है, where to market and where to produce. प्रोड्यूस कहाँ करें, वहां करना चाहेंगे प्रोड्यूस जहाँ पे चीप लेबर हो, चीप रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो वहां पे, और प्रोडक्ट को मार्केट वहां करेंगे जहां उसका ज्यादा डिमांड हो, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो.
तो ये सब जो सिलेक्शन के पहले ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए क्या है, दो तरह से किया जाता है, स्कैनिंग वर्सेस डिटेल एग्जामिनेशन। एक होता है स्कैन, कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी कागज, सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, किसी भी डॉक्यूमेंट को, बुक को आपने स्कैन किया। स्कैन किया मतलब वो सिस्टम में स्कैन नहीं किया, आपने ऐसे ही ब्राउज कर लिया, ऐसे ही देख लिया, आपने ऊपर ऊपर देख लिया, हाँ बुक कैसा है, अच्छा ओवरऑल क्या है। और एक होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन। तो डिटेल एग्जामिनेशन क्या होता है, आपने पूरी तरह से एनालाइज किया, एक एक इंफॉर्मेशन को, एक एक डेटा को, एक एक रिक्वायरमेंट को आपने पूरी तरह से एनालाइज किया। दैट इज व्हाट डिटेल एग्जामिनेशन इज। एंड स्कैनिंग इज जस्ट गोइंग थ्रू, आई मीन टेकिंग द ओवरव्यू, क्या अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी को आपने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्लाइड। What information is important? Environmental climate, it refers to internal as well as external conditions in a host country. Now, host country and this home country, these two topics are also there in our syllabus. That I will be covering later on. Okay, the topic name is FDI, impact of FDI in home country and host country. That I will discuss later on. So environmental, the internal and external conditions in a host country, the environmental climate that has to be studied, और उसका क्या, उसका उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ योर बिजनेस। इट रिवील्स द अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज रिस्क। नेक्स्ट स्लाइड। Let us see what is economic environment. The economic environment includes the structure and nature of the economy. हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी है वो बांग्लादेश का वैसे नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। चाइना का जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है और जो एनवायरनमेंट है वो हमारे देश से बिल्कुल अलग है। The stage of development of the economy, economic resources, the level of income, the distribution of income and assets, economic policies, global economic linkages, etc. तो ये सब सारा चीज इकोनॉमिक, कितना इनकम है लोगों का, लोग अफोर्ड कर पाएंगे, क्या प्राइस रखना चाहिए, कितना प्राइस सुटेबल होगा लोगों को ताकि लोग खरीद पाए ज्यादा से ज्यादा, फिर उतना प्राइस में कितना क्वांटिटी हम दे सकते हैं, ये सब सारा आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। Now, key economic forces are like factor endowments, the general economic framework of the economy, economic size, SEZ, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो इकोनॉमिक साइज हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, मार्केट साइज, ये सब है। इकोनॉमिक फ्रीडम, ट्रांजिशन टू मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट स्लाइड। Factor conditions. Number one is factor condition. So what is factor condition? A nation's input into the production process, such as input में क्या क्या लगता है कोई प्रोडक्ट बनाने में? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन क्या हो गया? कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, ह्यूमन कैपिटल भी आपका कैपिटल है। जैसे मान लीजिए विप्रो, विप्रो के लिए जो आईटी कंपनी विप्रो है, विप्रो का बहुत सारा चीज आता है, विप्रो का इलेक्ट्रिकल सामान में बल्ब भी आता है, ठीक है, या मान लीजिए विप्रो का कुछ एक साबुन भी आता है, तो ये अलग चीज हो गया। लेकिन जो आईटी कंपनी है उसमें क्या कैपिटल है? ह्यूमन कैपिटल है, आदमी काम करता है आईटी वाला, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या जो भी काम है उसका। तो एज ए नेशंस इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ह्यूमन, फिजिकल, नॉलेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कंडीशंस है फैक्टर कंडीशंस में। नेक्स्ट स्लाइड। इकोनॉमिक साइज, जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दो तरह का होता है, जीडीपी होता है, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। लेट्स सी व्हाट इज जीएनपी। तो इससे इकोनॉमिक साइज पता चलता है, किसी कंट्री का जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है, इससे कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस मालूम चलता है। It is the market value of final goods and services produced by factors of production plus net factor earned from abroad. Net factor देखिए, market value of final goods and services वो हो गया produced by factors of production plus net factor earned from abroad. Net factor कैसे निकलेगा abroad से? बाहर से जो पैसा आया डॉलर में, ठीक है जी, आपने जो एक्सपोर्ट किया बाहर में वहां से पैसा आया, या बाहर से रेमिटेंस आया, कोई कंपनी है वहां कमा करके इंडिया भेजी, तो दैट रेमिटेंस, एंड ऑन इंपोर्ट वट एवर यू हैव पेड, सो आफ्टर डिडक्टिंग द इंपोर्ट अमाउंट द पेमेंट
from this the remittance, whatever amount you are getting, that is called the net factor earned. Next is broadcast measure of economic activity. Next slide. Let us see list of countries by GNP. ठीक है, ये 2009, 2010 एंड 2011 एंड 11 का डेटा है मेरे पास में। ये टॉप 10 जो कंट्रीज है, देख लीजिए इसका क्या है रैंकिंग। यूनाइटेड स्टेट्स जो है 2009 में, 10 में, 11 में, तीनों साल में एकदम एक नंबर पे है। चाइना दूसरा नंबर पे है, जापान है फिर तीसरा, फिर इटली सातवां है, यूनाइटेड किंगडम है छठा, ठीक है, इंडिया है 9th पे। अभी इंडियन इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया 9th पोजीशन पे जा रहा है एज पर द जीएनपी कैलकुलेशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उस हिसाब से हमारा इंडिया का पोजीशन 9th है एज पर द फिगर ऑफ 2012 डेटा। और साथ ही साथ इसमें सबका जो कितना है जीएनपी वो भी दिखाया गया। अभी तो इंडिया का जीएनपी बहुत ज्यादा है, अभी तो इंडिया को कहा जा रहा है 5th, even 4th GDP wise। India's economy is standing 4th in world। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? देखिए, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपैरेटिव मेजर ऑफ मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू थ्री डायमेंशंस। ये 3 डायमेंशंस पे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नाप सकते हैं। क्या क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड स्टैंडर्ड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो गया कि लोग कितना दिन तक जिंदा रहेगा। पहले जो है लोग रहते थे मान लीजिए 50 साल जिंदा, 55 साल, लेकिन अभी लोग 70-75 साल जिंदा रहने लगे। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, आमदनी बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। लोग अब हाइजीनिक खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस हो गया। तो दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देन लिटरेसी, आपके कंट्री में कितना % लोग लिटरेट है, वो भी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नापा जाता है, लिया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना है, पर आदमी कितना कमाता है आपके देश में, वो भी एक है। इट इज ए स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ मेजरिंग वेल बीइंग। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वेदर द कंट्री इज अ डेवलपिंग और एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो ये ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट का डेटा से ही कहा जाता है कि कौन सा कंट्री डेवलपिंग है, कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा अंडर डेवलप्ड कंट्री है। एंड ऑल्सो टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। द इंडेक्स वाज डेवलप्ड इन 1990 बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हु महबूब उल हक। ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक के द्वारा। कंट्रीज फॉल इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एचडीआई, हाई, मिनिमम, और एचडीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हाई में आ जाएगा आपको डेवलप्ड कंट्री, मीडियम में आएगा डेवलपिंग कंट्री, और जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो रहेगा दैट विल कम अंडर डेवलपिंग कंट्री। तो ये 3 बेसिस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापने का। क्या है कि क्या डायमेंशन है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी नंबर 1, लिटरेसी नंबर 2 एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नंबर 3। अब देखिए 2013 का डेटा है मेरे पास में। इंडिया आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया, नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया का स्थान है 136, अपना देश का स्थान 136वां है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और उसी तरह से, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यस, चाइना का 101 है, इंडिया का 136 है, 136। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। चाइना का 101, हमारा 106, चाइना से भी पीछे है। नॉर्वे नंबर 1 पे आता है, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 3 पे आता है, ठीक है, 5th पे जर्मनी, 10th पे जापान। नेक्स्ट स्लाइड। मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट साइज दैट इज सेल्स पोटेंशियल। मार्केट साइज मतलब क्या है? कुछ भी आप
जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज खोल रहे हैं, तो कॉलेज में आप देखिएगा कि खोलने के पहले देखिए कि मार्केट साइज क्या है, मतलब सेल्स पोटेंशियल, मतलब आप अपना कोर्स को बेचिएगा। कॉलेज में क्या बेचेगा? कॉलेज अपना कोर्स बेचेगा। एक मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दे रहा हूं। तो सेल्स पोटेंशियल क्या है? इज प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट सिलेक्शन वेरिएबल। तो आपको जब लोकेशन, जब आप सिलेक्शन कीजिएगा कंट्री को, तो देखिएगा पहला क्या देखिएगा, मार्केट अट्रैक्टिवनेस कितना है। क्या क्या हमने देखा? ह्यूमन इंडेक्स देखा हमने, फैक्टर देखा, ठीक है। अभी मार्केट अट्रैक्टिवनेस देख रहे हैं कि मार्केट का साइज क्या है। मार्केट साइज प्रेडिक्टर्स इंक्लूड पास्ट एंड प्रेजेंट सेल्स डेटा। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप बिजनेस करेंगे, एंटर करेंगे, उसका देखना होगा प्रेजेंट एंड पास्ट डेटा क्या है सेल्स का। सोशियो इकोनॉमिक डेटा, सोशियो इकोनॉमिक डेटा सब क्या है? जीडीपी, पर कैपिटा इनकम। पॉपुलेशन का साइज क्या है? पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है? इंडिया एंड चाइना में बहुत पॉपुलेशन है, इसलिए बहुत कस्टमर है, बहुत पोटेंशियल है, इसलिए इंडिया में सब कोई बिजनेस खोलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमर मिल जाएगा डिफरेंट वेरिएंट का। अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इंक्लूड the obsolescence and leapfrogging of products, income levels, existing of trading blocks, taste and other cultural factors। तो ये सब कस्टमर का देखना होगा कि क्या टेस्ट है, क्या इनकम है, ये सब देखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है ईज एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। फर्म्स आर अट्रैक्टेड टू कंट्रीज दैट आर लोकेटेड नियर बाय। जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑर्डर, आप जब आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो मान लीजिए श्रीलंका में है, तो श्रीलंका के बाद आपका नेक्स्ट होना चाहिए इंडिया, होना चाहिए इंडिया के बाद बांग्लादेश होना चाहिए। तो दैट आर लोकेटेड नियर बाय एंड शेयर अ कॉमन लैंग्वेज। अब मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, मॉरिशस हो गया, ये सब में क्या है? कॉमन लैंग्वेज, हिंदी चलता है वहां। मॉरिशस में भोजपुरी भी चलता है। Have market conditions similar to those in their home countries। मार्केट का कंडीशन भी होना चाहिए। प्रेजेंट फ्यू मार्केट रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2012 का डेटा है। इसमें इंडिया आता है 123 पे, चाइना आता है इकोनॉमिक फ्रीडम। इंडिया में इकोनॉमिक फ्रीडम में आते हैं हम लोग 123 नंबर में, चाइना आता है 138 में, 10 पे है यूनाइटेड स्टेट्स। कहीं तो हम लोग चाइना से आगे हैं। चलिए, हांगकांग है नंबर 1 पे, 3 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 2 नंबर पे सिंगापुर। नेक्स्ट स्लाइड। कंट्री में क्या क्या रिस्क है वो भी देखना पड़ेगा आपको। द रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग हार्म और लॉस। क्या है रिस्क? क्या होता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम हार्म और लॉस और अ कोर्स इन्वॉल्विंग अनसर्टन डेंजर और हैजार्ड। ठीक है, तो अनसर्टन डेंजर और हैजार्ड को आप कितना आप ले सकते हैं, कितना बेयर कर सकते हैं, कितना आप रिस्क ले सकते हैं कोई काम करने के पहले, वही रिस्क बताता है। ठीक है। रिटर्न्स टेंड टू बी हायर इन कंट्रीज वेयर ऑपरेटिंग रिस्क का, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है उस कंट्री में रिटर्न्स का भी ज्यादा चांसेस है। फर्म्स में बैलेंस ऑपरेशंस। नेक्स्ट स्लाइड। देन दूसरा रिस्क क्या हो सकता है? पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल, जैसे पाकिस्तान में क्या है? बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है। अफगानिस्तान में पॉलिटिकल रिस्क है। आपको जो है ऐसा ऐसा बहुत सारा कंट्री है। आप इराक में चले जाइए, वहां पे फिलिस्तीन में चले जाइए, ये सब जगह में बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क, द एक्सपेक्टेशन दैट the political climate in a given country will change in such a way that a firm's operating position will deteriorate। ऐसा कुछ पॉलिटिकल डिसीजन, ऐसा कोई पार्टी आ गया जो कि अमेरिकन कंपनी के खिलाफ है, उसका शुरू से ही नारा था कि अमेरिकन को भगाओ। सपोज लेट्स फॉर एन एग्जांपल, तो क्या करेगा? आप जैसे ही वो पार्टी में आएगा, वो रूलिंग में आएगा पार्टी, आपके कंपनी को वहां से उखाड़ के फेंक देगा, भगा दिया जाएगा। तो कंट्री का रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क क्या है? माइक्रो पॉलिटिकल एंड मैक्रो। लेट अस सी पॉलिटिकल एक्शंस। लेट अस सी व्हाट इज micro risk or micro political risk. Political actions aimed only at specific foreign investment. For example, US bombing of Afghanistan in October 2001। देख लीजिए क्या रिस्क है। माइक्रो लेवल का ये हो गया
पॉलिटिकल एक्शंस एम्ड ओनली एट स्पेसिफिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यूएस ने बम बरसाया था तालिबान को बर्बाद करने के लिए, अक्टूबर 2001 में बम बरसा दिया था। क्या हुआ? एंटी अमेरिकन प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान, बर्न केएफसी रेस्टोरेंट और मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट। बताइए 2001 में जब अफगानिस्तान में बमबारी हुआ, लेकिन क्या उसका वो हुआ, मतलब असर हो गया पाकिस्तान में? जो केएफसी है, केएफसी कहाँ का है? अमेरिका का है। और मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट को भी उन लोगों ने क्या किया? जला दिया। अब मैक्रो लेवल पे देखिए क्या होता है। पॉलिटिकल एक्शंस दैट affect a broad spectrum of foreign investors. For example, after the communist revolution of Cuba, the takeover of property was aimed at all foreign investors regardless of industry or nationality. देखिए जब जब ये कम्युनिस्ट लोग आया शासन में और वहां पे आंदोलन किया क्यूबा में, तो फिर क्या किया? जितना था बाहरी कंपनी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री और नेशनैलिटी, सारा फॉरेन इन्वेस्टर का जो कंपनी था सबको उठा के ले लिया, अपने अपने अधीन कर लिया वो लोग। नेक्स्ट स्लाइड। लेट अस सी पॉलिटिकल risk in China. Now, industrial piracy is a big problem. So Procter, PNG stands for Procter and Gamble. देखिए Procter and Gamble भी ऐसा कंपनी है, लगता है इतना इसका प्रोडक्ट आता है हम लोगों के यहाँ भी कि लगता है कि इंडियन कंपनी है, लेकिन नहीं है। PNG estimates it losses $150 million from counterfeits. Counterfeits मतलब क्या? पायरेसी वाला काम बहुत होता है वहां पे। Daimler Chrysler, fake brake risks, windshield wipers, oil filters, etc. for Mercedes are being made and sold. ये देखिए सबका डुप्लीकेट वहां पे चल रहा है। Yamaha estimates that 5 out of 6 motorcycles and scooters are fake. देखिए Yamaha कंपनी बोलता है 6 में से 5 जो मोटरसाइकिल है वो फेक है। So rules, China में rules and regulations are ambiguous, can change from one day to the other. Government has been reluctant to crack down. State-owned factories are some of the biggest counterfeiters. देखिए state-owned factories are, मैंने वहां का चाइना का जो कंपनी है, सरकारी कंपनी, स्टेट ओन कंपनी, वही फेक माल बनाता है, फेक सामान बाहरी कंपनी का जो रहता है वही बना देता है फेक कंपनी। बताइए, तो गवर्नमेंट हैज बीन रिलक्टेंट टू क्रैक डाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड। कंट्री रिस्क। अब कंट्री रिस्क में कंपेटिटिव रिस्क, स्ट्रेटजी डिजाइन टू डील विद द रिस्क पोज्ड बाय कंपटीशन इंक्लूड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? किसी भी काम में आप पहला अगर शुरुआत करते हैं, उस सेक्टर में कोई नहीं है और आपने शुरुआत किया, तो यू वुड बी हैविंग एन फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Becoming the first major competitor to enter a country in order to gain the best partners, the best locations, and the best suppliers. Next slide. External sources of information for data collection. The major types of external secondary information sources include individualized reports from market research and business consulting firms. ठीक है, देखिए बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है, वो क्या करती है? मार्केट रिसर्च करती है, और उसका जो रिसर्च रहता है पूरा ऑथेंटिक, पूरा मेटिकुलस, और एकदम वो पूरा तगड़ा रिपोर्ट रहता है। बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट you can take a decision. So the major types of external secondary information sources include individualized reports from market research and business consulting. ठीक है, बहुत सारा कंपनी है। ठीक है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इज BNC, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा कंपनी है। नाउ सर्विसेज फॉर्म रिपोर्ट्स रिगार्डिंग रेलेवेंट बिजनेस टॉपिक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर रिपोर्ट्स। अभी इंडिया में भी जैसे आप कुछ भी या कहीं बाहर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या बिजनेस के लिए एंट्री करने का सोच रहे हैं, लोकेशन चूज करने का, देखिए IMF का रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट, ये सब क्या है? थर्ड पार्टी है। उसके अलावा जो कंसल्टिंग फर्म्स है उसका रिपोर्ट लीजिए, उसको स्टडी कीजिए, वो सबको बाय कीजिए। ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन का रिपोर्ट, तब आपको पता चलेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर कंट्री इज
suitable for your business or not. Based on that report, external agency report, you can take a decision. Next slide. Let us see sources of secondary data. कहां कहां से आ सकता है? डायरेक्टरी से आ सकता है। गवर्नमेंट बहुत सारा रिपोर्ट जारी करती है, जैसे हमारे यहाँ भी क्या है, सीएजी का रिपोर्ट होता है, आपने सुना होगा कई बार। सीएजी 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 स्टैंड फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित करती है हर 5 साल पे, 4 साल पे, 1 साल पे, ठीक है। तो वो सब रिपोर्ट को, इकोनॉमिक डेटा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, देन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, देन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देन ट्रेड एसोसिएशन, देन अदर फॉर्म्स। नेक्स्ट स्लाइड। कंट्री कंपैरिजन टूल्स, और कंट्री को कैसे कंपेयर कीजिएगा एक से दूसरे को। ग्रिड्स कैन बी यूज टू डिपिक्ट एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल ओनरशिप राइट्स, रैंक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड वेटेड वेरिएबल्स, दैट इज रिटर्न और रिस्क। अब इस तरह से आप कंट्री को रैंक कीजिए। आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, नाउ you order the country, you rank the country, which is first, which is second, which is third, where to go, where, which is riskier, which is less riskier, and where there is no risk. The matrices can be used to incorporate and weighted indicators of a firm's risks and opportunities. रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आपको देखना होगा कि कहां पे रिस्क है और क्या अपॉर्चुनिटी भी है ज्यादा। Plot the scores to more clearly reveal respective positions for comparative purposes. Next slide. सिंप्लीफाइड, देखिए ग्रिड है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 इस तरह से आपने दिया है, ये सब पैरामीटर्स है। क्या क्या है? एक्सेप्टेबल ए, अनएक्सेप्टेबल यू, ठीक है। एक्सेप्टेबल के लिए ए लिखा है, नॉट एक्सेप्टेबल के लिए यू लिखा है। अलाउ 100% ओनरशिप, आप देखिए ये सब आपका पैरामीटर है। डायरेक्ट कॉस्ट कितना है, रिटर्न कितना मिलेगा, साइज ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, लाइसेंसिंग मेजर का क्या रूल है, मार्केट का साइज क्या है 3 to 10 ईयर्स के लिए, टैक्स का रेट क्या है, मार्केट का शेयर क्या रहेगा, साइज क्या है, शेयर क्या है, एक्सचेंज का क्या प्रॉब्लम है, ये सब सारा पैरामीटर है। बिजनेस का लॉ क्या है, ये सब सारा पैरामीटर पर आप वेट दीजिए, ठीक है। 0 से लेकर के 5 तक के वेट में आप वेट कीजिए और उस हिसाब से आप कंट्री को रैंक कीजिए। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड कंट्री कंपैरिजन ग्रिड 3 इयर्स टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंट्री जैसे 1 2 3 4 5 है, तो वेरिएबल में क्या रखा है, ठीक है, ओनरशिप एंड सोल। ओनरशिप में क्या है, सोल हो गया खुद से, तो कंट्री 1 में जा सकते हैं, तो नो, फिर कंट्री 2 3 4 में सोल जा सकते हैं। कंट्री ज्वाइंट वेंचर मोड में कंट्री, सब कंट्री में जा सकते हैं। रिटर्न कितना है, इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उस पर क्या है, उसको फिर आप जो है उसी हिसाब से रेट कीजिए, ग्रेड कीजिए, रेट कीजिए और उसको वेट दीजिए और फिर आप चूज कीजिए कैसे जाए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी वर्सेस रिस्क को दिखाया है। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो रिस्क मैट्रिक्स भी रहेगा। लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि इंक्रीज अपॉर्चुनिटी है तो उसमें अगर रिस्क थोड़ा कम है या रिस्क भी है लेकिन इंक्रीज अपॉर्चुनिटी है तो आप जा सकते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए कि रिस्क बहुत ज्यादा है और अपॉर्चुनिटी भी कम है, तो ऐसा कंट्री को आप चूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। Implications. Firms use both qualitative and quantitative information to determine which markets to serve and where to locate production. Because each firm has unique competitive capabilities and objectives, the factors affecting the country selection decision will differ for each. देखिए हर कंट्री का अलग रूल रेगुलेशन है और आपका भी जो है डिसीजन हर कंट्री के लिए अलग होना चाहिए। हर सब कंट्री को एक ही तराजू में आप नहीं तौल सकते हैं, तो वही बता रहा है आप। नेक्स्ट स्लाइड। When allocating resources across countries, a company must consider its need for reinvestment versus divesting, diversification versus concentration. Next slide.
ये दोनों चीज आपको रीइन्वेस्टमेंट वर्सेस डाइवेस्टिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस कंसंट्रेशन देखना होगा। डाइवेस्टिंग क्या है देखते हैं। हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है इसको, और डाइवेस्टिंग रेफर्स टू द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या है डाइवेस्टिंग, रेफर्स टू द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को कम करना ही कहा जाता है। A firm may choose to simply harvest the earnings of an operation or divest the assets there as well। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं आपको कि कोई कंपनी है बाहर में आपका, आप क्या कर रहे हैं, देखिए एक होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि फर्दर कैपिटल इन्फ्यूज करना, और एक होता है डाइवेस्टिंग, ठीक है, या डिसइन्वेस्टमेंट भी कह लें इसको, डाइवेस्टिंग या हार्वेस्टिंग। उसमें क्या है कि कंपनी के एसेट्स को एक उसने सेल कर दिया, किसी और को भी पार्टनर बना दिया, शेयर इशू कर दिया, या और भी कुछ अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर को बुलाया, ठीक है जी। तो उस तरह से एक तो अपना कैपिटल नहीं डालना पड़ा और कंपनी का कुछ स्टेक बेच दिया। स्टेक बेच दिया तो क्या हो गया, कंपनी तो है ही, लेकिन कुछ ओनर भी आ गए, कुछ दूसरे लोग भी आ गए, और उससे क्या हुआ, आपका आपके पास कैपिटल आ गया। तो ये भी डिसीजन आपको देखना होगा कि डाइवेस्टिंग, रीइन्वेस्टमेंट वर्सेस डाइवेस्टिंग, मतलब रीइन्वेस्ट करना है या डाइवेस्ट करना है। इफ एन ऑपरेशन नो लॉन्गर फिट्स अ कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटजी और इफ बेटर अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट एल्सवेयर, इट मस्ट डिटरमाइन हाउ टू एग्जिट दैट ऑपरेशन। अगर बेटर अपॉर्चुनिटी है कहीं पर दूसरा जगह, तो आपको क्या करना है, यहां से निकल करके वहां से चले जाना है। एग्जाम्पल, Carrefour sold off underperforming operations in Korea and Slovakia to have funds for more promising ventures in China, Russia। देखिए Carrefour जो है अपना क्या किया, अंडर परफॉर्मिंग जो उसका कोरिया एंड स्लोवाकिया में था उसको बेच दिया, एंड चाइना एंड रशिया में वो नया वेंचर लगा दिया। नेक्स्ट, a firm may take different paths route to gaining sizable presence in most countries। Diversification strategy, where a firm moves rapidly into many foreign countries and then gradually builds its presence in each। इसमें क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन में बहुत सारा कंट्रीज में वो बिजनेस अपना खोल लेता है और वहां पे ग्रेजुअली बिल्ड्स इट्स प्रेजेंस इन ईच, और हर कंट्री में अपना प्रेजेंस बनाता है। कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी क्या बोलता है जी, whereby a firm moves into a limited number of countries and develops a strong competitive position there before moving into। एक कंट्री में घुसा और वहां पे अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाया बिफोर मूविंग टू अदर कंट्री। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये एक टॉपिक हमने कवर कर लिया कि हाउ टू सेलेक्ट द लोकेशन। लेट मी जस्ट रीड आउट what exactly the syllabus is। The syllabus is कंट्री इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। तो कंट्री ये हमने पढ़ा है अभी, कंट्री इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन पढ़ लिया हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या कह रहा है कि विद द रैपिड स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन multinational, all these concepts I have already covered earlier। So with the rapid spread of globalization, the countries are witnessing an increase in financial investments into other nations। So foreign investment is largely seen as a catalyst for economic growth। क्या बोल रहा है, the countries are witnessing an increase in financial investments into other nations with the rapid spread of globalization। As globalization increases, more and more companies have branches in countries around the world। For some multinational corporations, opening new manufacturing and production plants in a different country is attractive because of the opportunities for cheaper production and labor costs। Yeah, this is self-explanatory। So just because of the opportunities, attractive opportunities
just because of the cheaper labor, they are doing the investment, foreign investment. Next slide. Foreign investments are typically defined as either direct or indirect. Let us see what is foreign direct investment. This is also called FDI. FDI stands for foreign direct investments. देखिए, foreign direct investments are when investors purchase a physical asset such as plant, factory or machinery in a foreign country. तो वैसा सिचुएशन एफडीआई का पक्का आएगा एग्जाम में, देखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी आ सकता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड एफडीआई पर तो आएगा ही आएगा, अगर नहीं आया हो या एफडीआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा क्वेश्चन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब भी कोई कंपनी डायरेक्टली कोई मशीन, प्लांट या कुछ भी ऐसा एसेट खरीदती है फॉरेन कंट्री में, तो ये कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जनरली स्पीकिंग, direct foreign investments are favored by the foreign country over indirect foreign investment. अब देखिए, फॉरेन कंट्री क्या करती है, मतलब व्हाट डू दे प्रेफर? दे प्रेफर डायरेक्टली investing into the foreign country because the assets they purchase are considered long term. Therefore, they help boost the foreign country's economy over time. अब वो डायरेक्टली एसेट खरीदेगा तो कम कंट्री का इकोनॉमी भी बूस्टअप होगा। There are two types of foreign direct investment. Next slide. Next slide, please. Yes. ये देखिए, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये दो बात जरूर लिखिएगा, इसको एकदम याद कर लीजिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे पहला तो हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई कंट्री डायरेक्टली किसी फॉरेन कंट्री में जाके कोई भी एसेट्स खरीदती है, प्लांट खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो फॉरेनर कंपनी होती है वो दे प्रेफर टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू अनदर फॉरेन कंट्री बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दैट एसेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, परचेज किया जाता है। तो एंड तीसरा पॉइंट है कि वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कंट्री का इकोनॉमी भी बूस्टअप करता है। और इसमें दो तरह का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई होता है। क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट, एक होता है वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट? व्हेन एन इन्वेस्टर, आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट एंड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, या डिफाइन हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट और वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। तो जब भी ये वर्ड सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि ये एफडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एफडीआई के बारे में शुरुआत में लिखिएगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर से लिखिएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 10 मार्क्स कहीं नहीं गया, एकदम पूरा आ जाएगा। लेट अस सी, व्हेन एन इन्वेस्टर establishes a similar type of business in a foreign country, or when two companies of the same industry operating in different countries merge, it is known as horizontal investment. A company pursues this kind of investment to gain market share and become a global leader. क्या करता है कंपनी? देख लीजिए, इसमें हॉरिजॉन्टल में जब आप सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, आप जिस बिजनेस में है बाहर का कंट्री में भी कोई कंपनी है जो कि सेम बिजनेस में है, तो आप उसके साथ मर्ज हो जा रहे हैं। ठीक है जी, उस कंपनी के साथ मर्ज हो जा रहे हैं, तो अभी आप एक हो गए। या आपने क्या किया, या तो मर्ज हो गए, या दो देश में है तो उसको आपने खरीद लिया। तो उससे बजाय इसके कि आप नया प्लांट खोलेंगे, किसी के साथ मर्ज हो गए, तो क्या बेनिफिट हो रहा है? उसका जो कस्टमर बेस है वो आ गया, नया आपको प्रोडक्ट के बारे में जो है सो अवेयरनेस है लोगों में, मार्केटिंग में कम परेशानी होगा आपको। ठीक है, तो ये अ कंपनी यूजेस दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टू गेन मार्केट शेयर एंड बिकम अ ग्लोबल लीडर। और दूसरा चीज है, आपका जो कंपटीशन है वो भी खत्म हो गया ना, जिससे आप कंपीट कर रहे थे पहले, अब तो वो आप ही का हो गया, तो वो भी हो जाएगा। लेट अस सी व्हाट इज वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। Vertical investment, it refers to when a company of one country acquires or merges with a firm in another country. ठीक है, ये इस केस में
वर्टिकल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एक्वायर कर लेता है। और उस केस में क्या था कि टू कंपनी जो सेम इंडस्ट्री में है वो मर्ज हो जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बिजनेस फील्ड्स। कोई भी कंपनी के साथ में वो कर लिया। फॉर एग्जांपल, अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ वन कंट्री एक्वायरिंग द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कंपनी। देख लीजिए, अभी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जो रॉ मटेरियल है उसको आप खरीद रहे थे कहीं से। अब आपने क्या किया, बजाय खरीदने के वो जो जिस कंपनी से आपका रॉ मटेरियल आ रहा था उस कंपनी को ही आपने खरीद लिया या मर्ज कर लिया उसको। तो अभी आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी आप ही बना रहे हैं, और जो फिनिश प्रोडक्ट में जो लगेगा प्रोडक्ट आएगा, मेन प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट, वो भी आप ही बना रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अ कंपनी इंडल्जेस इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मूव द डिपेंडेंसी ऑन अदर्स एंड अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी क्या है, रॉ मटेरियल के लिए आपको किसी और के ऊपर में रहना पड़ता था निर्भर, वो अभी आपको नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि आप ही का हो गया रॉ मटेरियल वाला भी कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड। So this is the basic difference between horizontal and vertical investment. Now let us see foreign direct foreign indirect investments are, देखिए हमने अभी पढ़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले पढ़ा हमने जिसमें हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट है और वर्टिकल इन्वेस्टमेंट है। अभी आता है फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर व्हेन इन्वेस्टर्स बाय स्टेक्स इन फॉरेन कंपनीज that trade on their respective stock exchanges। क्या होता है, एक्सक्यूज मी, इन्वेस्टर्स बाय स्टेक्स इन फॉरेन कंपनीज दैट ट्रेड ऑन देयर रेस्पेक्टिव स्टॉक, जैसे नैस्डैक इज ए स्टॉक एक्सचेंज। ओके, उसी तरह से और भी बहुत सारा है जो स्टॉक वॉल स्ट्रीट में है। ठीक है, नैस्डैक। तो जैसे हमारे यहाँ कौन सा स्टॉक, बीएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक, एनएससी हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही वॉल स्ट्रीट में कौन सा है जी, नैस्डैक है। तो उसी तरह से जो रेस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज में काम लिस्टेड है कंपनीज, तो इन्वेस्टर ने क्या किया, स्टेक खरीद लिया उस कंपनी में। दीज आर टिपिकली, उसमें क्या हुआ, डायरेक्टली स्टेक ही खरीद लिया, ना तो एसेट्स खरीदा, ना कंपनी के साथ मर्ज हुआ, ना कुछ पैसा, सीधा उसका स्टेक ही खरीद लिया। These are typically shorter term investments that aren't always used for the growth and development of another country's economy over time. In general, this form of foreign investment is less favorable as the domestic company can easily sell off their investment very quickly, sometimes within days of the purchase. देख लीजिए, it can be sold out very quickly, sometimes within days of the परचेज। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट किया और जैसे ही देखा आपने अपॉर्चुनिटी, वहां से आप निकल भी गए तुरंत तुरंत। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। एफपीआई क्या होता है, फुल फॉर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। Indirect investments include not only equity instruments such as stocks but also debt instruments such as bonds। मतलब सीधा समझ लीजिए बात, जो बाहर में कंपनी है वो शेयर इशू करती है, वो नैस्डैक में या कहीं बाहर में हांगकांग और शंघाई में लिस्टेड है, वहां का कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, शेयर खरीद लिया, और आप देखेंगे बहुत ज्यादा शेयर खरीद लिया, आपने देखा कि अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा अच्छा आ रहा है मुनाफा, तो आप 2 दिन में निकल गए वहां से, बेच लिया आपने। तो ये आपने क्या हो गया, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसको एक और चीज कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। तो इक्विटी एंड डेट के थ्रू इसमें होता है। नेक्स्ट स्लाइड। Strategy to acquire greenfield investment and brownfield investment. Let us see what is greenfield investment. Now, in this strategy, the company starts its business operation in another country from scratch. ग्रीन फील्ड में आपको सारा फील्ड खुद से तैयार करना होगा अपना बिजनेस का। ठीक है जी, स्क्रैच लेवल से। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, देखिए डोमिनो का हम लोग पिज्जा खाते हैं, ऐसा लगता है कि इंडिया का ही कोई ओनर होगा, लेकिन डोमिनो एक्चुअल में इंडिया का नहीं है। मैकडोनल्ड, हर जगह आपको मिल जाएगा एक ब्रांच, ठीक है, 1 या 2 ब्रांच।
So Domino's and McDonald's are the US-based companies that started their business in India from zero. They have started their business in India. They have started in India from zero. Currently, they are leading in their segments. अब देख लीजिए, अभी आपको एक मार्केट में मिल जाएगा पिज्जा हट, ठीक है, या कुछ और इस तरह से मिल जाएगा, कुछ भी नाम, XYZ पिज्जा, but they are not the leaders. But when they started this greenfield investment, McDonald and this Domino's, they have to start from the scratch, zero from zero, and now they are the leader in that segment, पिज्जा segment, ठीक है। और बर्गर सेगमेंट, मैकडोनल्ड का क्या आता है, मेनली मैकडोनल्ड का ये है, होता है बर्गर, फेमस है सबसे ज्यादा। तो दिस इज व्हाट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। नाउ नेक्स्ट इज ब्राउनफील्ड। So in this strategy, the company does not create its business from scratch. ग्रीनफील्ड में स्क्रैच से किया, एग्जांपल हमने डोमिनो एंड मैकडोनल्ड का लिया, लेकिन ब्राउनफील्ड में क्या होता है, स्क्रैच से नहीं करता है। सो इंस्टीड दे चूज मर्जर्स एंड एक्विजिशन, किसी के साथ मर्ज हो गए या किसी को एक्वायर कर लिए। रिसेंटली अनदर यूएस बेस्ड कंपनी वॉलमार्ट, अब देखिए वॉलमार्ट बहुत बड़ा रिटेल ये है, रिटेल बिजनेस है। सो वॉलमार्ट इंक एक्वायर्ड फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, किसने खरीद लिया जी, वॉलमार्ट ने खरीद लिया। एंड इंडियन कंपनी डज एक्वायरिंग ऑल इट्स एसेट्स। तो अब देखिए डोमिनो ने स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो उसका स्टोर, उसका जो जो भी उसका जहां पर है डोमिनो पिज्जा का ब्रांच है या जो भी फ्रेंचाइज जो भी है, उसको अपने से सब बनाना पड़ा। लेकिन फ्लिपकार्ट को खरीद लिया किसने, वॉलमार्ट ने खरीद लिया, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिटेल चेन है। वॉलमार्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिटेल चेन, यूएस बेस्ड है। उसने किसको खरीद लिया जी, फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट कौन, बंसल का तो था कोई, सम बंसल वाज द ओनर, आई मीन स्टार्टेड, आईआईटी ग्रेजुएट, टू ब्रदर्स, they started Flipkart. I forgot the name, okay. And so this Flipkart was acquired by Walmart Inc. So उसका जितना एसेट्स एंड लायबिलिटीज है सब उसका हो गया। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो हुआ, लेकिन साथ में जितना कस्टमर है उसका, कस्टमर को क्या मतलब है कि वॉलमार्ट ने खरीद लिया कि किसने खरीद लिया, कि रिलायंस ने खरीद लिया। उसको तो वो फ्लिपकार्ट में गया, लॉगिन किया, अपना सामान को ऑर्डर किया, सस्ता में मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है तो लिया वहां से। So this is called brownfield investment. So strategy to acquire two concepts are there. One is greenfield that you have understood, and brownfield field investment that also I have made it clear to you. Next is routes. Next slide. Some routes are there. Okay. So automatic route and approval route. Okay. Just a minute. Let us see. So what are the automatic routes? In the automatic course, foreign companies or institutions do not require any approval of the government or any agencies. इसमें कोई भी आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है फॉर इन्वेस्टिंग इन अनदर कंपनी। बस गए, वहां का लॉ आपको पता है, यू आर कन्वर्सेंट और यू आर फेमिलियर, और दैट लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर favorable to you, and just taken decisions and started your business. Next is approval route. In the approval, so पहला हमने एक्वायर पढ़ा, एक्वायर में क्या सब था, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। अभी रूट्स है, रूट्स में क्या है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये पढ़ाई कर रहे हैं। सो अप्रूवल रूट्स में क्या होता है, in the approval route, foreign companies or institutions require approval from the government or any specified body of the country where they want to invest. A nation's government decides which business investments can come via the automatic or approval route. Generally, if the country's government wishes to boost its economy, they allow direct foreign investment funds. अगर कंट्री को आगे बढ़ना है, आपके कंट्री में लोगों के पास उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट में, तो आप क्या करते हैं, जनरली कंट्री क्या करती है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए उसको बुलाते हैं, करवाते हैं इन्वेस्टमेंट।
बहुत सारा आपके, ये सब तो बड़ा बड़ा एग्जांपल हो गया यूएस बेस्ड। इंडिया में भी आप ले सकते हैं एग्जांपल, आपको टाटा AIA है, बजाज एलियंस का मैंने दिया, इंश्योरेंस सेक्टर में दिया। फिर आपको देखिए एक कंपनी है, पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, रिलायंस म्यूचुअल फंड। नाउ इट्स नेम हैज चेंज फ्रॉम रिलायंस म्यूचुअल फंड टू निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो निप्पॉन कहाँ का है? निप्पॉन शायद जापानीज कंपनी है निप्पॉन। तो निप्पॉन हो गया है, तो वो क्या था, वो FDI है, FDI के कारण ही हो पाया संभव कि बाहर रिलायंस ने बेच दिया अपना बिजनेस, अब रिलायंस का नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। FDI, नेक्स्ट स्लाइड। FDI एंड FII इन द ग्लोबल इकोनॉमी। देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, ये मैंने लेटेस्ट, मुझे जो डेटा मिला वो मैंने स्लाइड में इनकॉर्पोरेट किया, लेटेस्ट डेटा। According to World Investment Report 2023, after a strong rebound in 2021, global FDI fell by 12% in 2022 to 1.3 trillion US dollar, due mainly to overlapping global crisis। क्या क्या जी ग्लोबल ग्लोबल क्राइसिस हुआ? देखिए 21 में, 21 के पहले आपको 20 आ गया, 20 के पहले 19 आ गया। तो ये जो बता रहा है वो तो मैं बताऊंगा ही। यूक्रेन का वॉर हुआ, हाई फूड एंड एनर्जी प्राइसेस बढ़ गया, एंड सोरिंग पब्लिक डेट, पब्लिक का डेट सोर हो गया। वॉर जो है यूक्रेन का हुआ। उसके साथ साथ में कोरोना का जो काल आया आपको, कोविड 19, 19 में जो कोविड आया, उसने क्या किया, इस मार्केट को भी तहस नहस कर दिया। तो उसके कारण से फेल डाउन बाय 12%। ओके, now the decline was felt mostly in developed economies where FDI fell by 37% से FDI foreign direct investment कम हो गया। 378 बिलियन US डॉलर से FDI कम हो गया। that is equivalent to 37%। नेक्स्ट स्लाइड। What stalls foreign investments? स्टॉल मतलब क्या होता है? स्टॉल मतलब कि बाधा, रुकावट। तो what stalls foreign investments? Along the international crisis or external factors, lacuna in domestic unfavorable conditions। देखिए, lacuna in domestic unfavorable conditions। अब मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल है। अब देखिए, पॉस्को स्टील है, ठीक है जी। अब पॉस्को स्टील, अब आप जब भी आप कोई माइनिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, जब आप कोई भी आप प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपको ह्यूज एकड़ ऑफ लैंड चाहिए। छोटा मोटा 1 बीघा लेने से तो चलेगा नहीं, एकर्स में लेना होगा बहुत ज्यादा जमीन। तो बाहरी कंपनी है, मान लीजिए कोरियन कोई कंपनी है, और यहाँ पर जमशेदपुर में या सिंहभूम में, लेट्स से सिंहभूम वेस्ट और नियर बाय जमशेदपुर, दे वांट टू सेट अप अ न्यू प्लांट फॉर देम, सो दैट इज FDI। ठीक है जी। अब वो आ रहा है, अभी लोकल जो लोग है यहाँ, आदिवासी लोग है, वो बोलेंगे कि जंगल, जमीन और जल, ये तीनों का रक्षा करना का हमारा कर्तव्य है, और जमीन देगा ही नहीं। तो जमीन देगा ही नहीं तो सरकार कितना भी ना कर अगर ले, तो कहां से वो जमीन आएगा, कहां से वो कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर सरकार को भी चाहिए, वहां पर अगर जमीन उसका जाता है तो सरकार को उसको कहीं और जमीन देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री भी लाना है, या उसको रिलोकेट करे कहीं पर, उसको नौकरी दे, उसको सारा सुविधा दे। तो व्हाट दे आर सेइंग, डोमेस्टिक अनफेवरेबल कंडीशंस। So along with international crisis और external factors, एक्स्ट्रा कोरोना अपने कंट्रोल में नहीं था, वो अचानक से अपने से आया, so it is beyond your control, but the domestic conditions are under your control, the government can't control, the government make such an environment which is business friendly, which is FDI friendly, so that foreigners can come and install their, commission their project. But this is not happening. Along the international crisis or external factors, lacuna in domestic unfavorable conditions analyzed through PESTEL। PESTEL क्या है देख लीजिए, PSTEL। PESTEL stands for, P stands for political, E stands for economic, S stands for social, T stands for technological, E stands for environmental,
and L stands for legal. Analysis also discourage foreign investment. तो जो पेस्टल है, पेस्टल अगर फेवरेबल नहीं रहेगा, और ये पेस्टल किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सारा जो चीज है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, आप लीगल रूल्स ऐसा बनाइए ताकि जो आएंगे बाहर से वो बिजनेस करने, उसको उसके फेवर का नहीं, बट ऐसा इजी हो, उसका टास्क इजी हो, तभी ना वो बिजनेस लगाएगा, उसके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, और आप इन्वेस्ट करवाना नहीं चाहते हैं, तो आपका क्या होगा? कंट्री का विकास होगा, आपका जिला का विकास होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, कितना सारा उसके कारण सब्सिडी अपॉर्चुनिटी आएगा, नाम होगा शहर का, सरकार को रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा। So these are the stalling thing, these are the hindrance, you can say. Now, other than above mentioned external and domestic factors, reputation of a country, a non-measurable factor, plays a vital role in receiving foreign investments. अब देखिए, reputation of a country, अभी पाकिस्तान का रेपुटेशन क्या है? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई आदमी पाकिस्तान में चाहेगा कोई बिजनेस लगाना? नहीं चाहेगा, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कोई डिसीजन कैसे होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण कंट्री का रेपुटेशन भी खराब ही रहता है। द रेपुटेशन फैक्टर एंड इट्स इम्पैक्ट, हाउएवर, कैन बी जज्ड थ्रू द रिपोर्ट्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो रिपोर्ट बनाती है, और उसमें जो कंट्री का जो रेपुटेशन है उसके बारे में चर्चा करती है, उसको रेफर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया है सिलेबस का। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। टुडे आई हैव कवर्ड कंट्री इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, देन आई हैव आल्सो कवर्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नाउ लेट अस मूव टू impact of FDI on home and host countries। जिनमें मैंने बताया था कि FDI का इम्पैक्ट क्या हो सकता है होम एंड होस्ट कंट्रीज पर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, तो प्लीज इसको आप लेक्चर सुनिए, जो प्रेजेंटेशन है उससे नोट भी बना सकते हैं, और इसको पढ़िए, सुनिए कम से कम 2-3 बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पैक्ट ऑफ ऐसे आ सकता है। एक होम कंट्री के बारे में ही दे सकता है 5 मार्क्स का, या होस्ट कंट्री के बारे में, या डिफरेंशिएट बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई, दैट इज एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑन होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। होम कंट्री मतलब क्या हो गया? जहां के आप हैं वहां हो गया होम कंट्री, एंड होस्ट कंट्री मतलब क्या हो गया? जिस देश में आप बिजनेस करने जा रहे हैं, दैट इज द होस्ट कंट्री। तो एफडीआई का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वही बताया गया है। So FDI is a substitute for the imports of goods and services. FDI क्या है? Substitute है for the imports of goods and services. It betters the current account of host nations balance of payments. ये क्या करता है? Current account of host nation जो है, host जो आपका जो जिस देश में कर रहे हैं बिजनेस, उस देश में आप FDI लगाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप एंट्री कर रहे हैं, तो उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है, जो मैंने डिस्कस किया था अर्लियर क्लासेस, आई हैव डिस्कस व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल्स। करंट अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट भी था उसमें, कैपिटल अकाउंट है, ये सब उसमें स्टडी करना है। तो इसको आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कंट्री में जाता है तो उसका बेटर करता है, क्या बेटर करता है? करंट अकाउंट ऑफ, करंट अकाउंट जैसे मैंने बताया, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट को बेटर करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनीज और एंटिटीज बेस्ड इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्री में आपको जो है सो जहां पे इंटरेस्ट है आपका हो रहा है बिजनेस के लिए, इंटरेस्टेड माने इंटरेस्टेड नहीं, बट बिजनेस के लिए जो आपका फेवरेबल जहां पे एनवायरनमेंट है उस कंट्री में करते हैं, दैट इज एफडीआई। while FDI offers important benefits to both host countries, that receive the investment and home countries where the investing companies are located, there are also costs involved in both.
देखिए एफडीआई के थ्रू दोनों कंट्री को फायदा होता है जी। ठीक है, आपको फायदा क्या होता है होम कंट्री को, सबसे पहला देख लीजिए कि आप जो है होम कंट्री को आप वहां से प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट अपना देश लाएंगे, ये फायदा हो गया। दूसरा कंट्री को क्या फायदा हो रहा है, उसको पैसा नहीं है कुछ करने के लिए अपने पास में, तो आप जाके वहां पे कर रहे हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सामान बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वहां का सरकार को टैक्स मिल रहा है, तो ये सब बहुत सारा बेनिफिट्स है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें एक चीज और आता है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। जब आप होम एंड होस्ट कंट्री में जाते हैं तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू होम एंड होस्ट कंट्रीज क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कैन ब्रिंग इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स टू बोथ host countries that receive the investment as well as home countries where the investing companies are based. However, there are also cost risks associated with FDI for all parties involved. Cost, risk भी है and cost भी है, जो जितना भी पार्टी इन्वॉल्व है सबके लिए। Here are major costs and benefits of FDI for host and home countries. अब देखिए होस्ट कंट्री के लिए क्या क्या है। होस्ट कंट्री के लिए जो है 1 minute। Yes, for host countries, now costs and benefits of FDI for host countries have been stated below. Number one is FDI, that is foreign direct investment, can create jobs and drive economic growth through the capital invested. तो इकोनॉमिक ग्रोथ को वो ड्राइव करेगा एंड जॉब क्रिएट करेगा। जॉब्स जनरेटेड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब देखिए जॉब भी जनरेट हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रहा है, ये सब बेनिफिट है होस्ट कंट्री के लिए, नया जिसमें जहां पे बिजनेस खुल रहा है उस देश के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। होस्ट कंट्रीज के लिए क्या है? एफडीआई कैन क्रिएट जॉब्स एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जॉब्स का जनरेशन हो रहा है एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है। किस कंट्री के लिए? होस्ट कंट्री के लिए। हाउएवर foreign firms can crowd out small local businesses and create dependence on foreign technology. अब जो देखिए इसका ये है डिसएडवांटेज एक हो गया कि क्या जो लोकल जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के लिए, बाहरी कंट्री का जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके ऊपर में, फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाएंगे। नाउ एफडीआई कंट्रीब्यूट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट through investments in transport, electricity, telecommunications, etc. However, some projects may cause environmental issues. देखिए अब जब कोई कंपनी एफडीआई के थ्रू आता है, कहीं प्लांट लगाएगा, कुछ करेगा, तो वहां पे एक बस्ती भी बसाएगा, एक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था करेगा, टेलीकम्युनिकेशन का करेगा, ट्रांसपोर्ट का सारा व्यवस्था करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एरिया डेवलप होगा। तो पैसा लगाया किसी और ने, लेकिन बेनिफिट तो सबको मिल रहा है। रोड बनेगा, ट्रांसपोर्ट बनेगा, सब बनाएगा अपना वो माल ढुलाई के लिए, लॉजिस्टिक पार्ट के लिए। लेकिन कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो एनवायरमेंटल इश्यूज उसमें क्रिएट होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जो पानी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो एनवायरमेंटल है, कोई जंगल से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो एनवायरमेंटल हो गया, माइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो एनवायरमेंटल हो गया, इश्यूज हो गया, तो वो इश्यूज को आपको क्लियर करना होगा। Next is FDI gives access to international markets and supply chains, which helps local firms but exposes them to global competition. अब FDI आने से क्या होता है, जो मार्केट उसको एक इंटरनेशनल मार्केट मिलता है एंड सप्लाई चेन्स जो है which helps local firms but exposes them to global competition. अब सप्लाई चेन भी जो है लोकल फर्म्स को मिल जाता है। Now, host countries lose some policy autonomy and control as they have to conform to demands of foreign investors. अब देखिए कोई जो आपके यहाँ पैसा लगाने आया तो ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लगा रहा, तो करोड़ ऑफ रुपीज लगाएगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा। तो लगाएगा
तो उसका जो बिजनेस रहेगा, आप खुद मंगवा रहे हैं बिजनेस को, ताकि आपके देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, डेवलप हो आपका देश, आपका देश का जो है सो इकोनॉमी अच्छा हो, तो आपको कुछ ऑटोनॉमी भी देना होगा, पॉलिसी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोलिंग पावर भी देना होगा। तो उससे क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर का, अभी अभी मैं आपको एक एक बहुत ही फेमस एग्जांपल बताता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी, कलकत्ता में शुरू किया था उसने अपना बिजनेस, ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे करके वो क्या था, वो एक तरह से एफडीआई ही था। यहाँ के आके अंग्रेजों ने अपना कंपनी खोला, धीरे धीरे अपना स्टाफ रखा, रखते रखते क्या किया फिर वो धीरे धीरे जो है शासन सत्ता हाथी आने लगा, जैसे ही साम दाम दंड भेद सब नीति अपना करके अपना बिजनेस एम्पायर बड़ा किया। उसके पास पैसा था और उसके पास सारा कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था। टेक्नोलॉजी मतलब मार धार करने के लिए भी बंदूक था, बॉम्ब था, टैंक था, सब था। और जो यहाँ का राजा वगैरह था वो सब उतना शक्तिशाली नहीं था, उतना नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। और तो उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके जो है सो शासन चलाया, अंग्रेजों ने शासन चलाया। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि जो कंट्रोल, ऑटोनॉमी और कंट्रोल हो जाएगा उसका, ठीक है जी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका। हाउएवर एफडीआई कैन इंट्रोड्यूस बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। लेकिन जो एफडीआई आने के कारण जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एंड मैनेजमेंट है वहां पे बेस्ट प्रैक्टिस होगा, क्योंकि उसको तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग रहेंगे काम करने वाले उसमें। FDI brings new capital that can be invested in productive assets and infrastructure. This expands the productive capacity of the economy and supports growth. अब FDI आने से क्या हो जाएगा, नया कैपिटल आएगा जो कि प्रोडक्टिव एसेट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होगा। नेक्स्ट स्लाइड। फॉरेन कंपनीज ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए फॉरेन कंपनी आने से टेक्नोलॉजी एडवांस आएगा, मैनेजरियल स्किल्स आएगा, बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ लोकल फर्म्स थ्रू स्पिल ओवर इफेक्ट्स। बाहर का कंपनी आया तो अपने साथ नया नया टेक्नोलॉजी लेके आएगा, अच्छे अच्छे लोग लेके आएंगे जो बहुत ही स्किलफुल है, एक्सपर्ट लोग हैं। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एंड कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा लोकल मार्केट में। ये सब सारा जो है आपको बेनिफिट्स है होस्ट कंट्रीज के लिए। FDI creates more job directly through the operations of foreign affiliates and indirectly through higher demand for goods and services from local suppliers. अब इससे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एफिलिएट्स एंड इनडायरेक्टली थ्रू हायर डिमांड फॉर दिस रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। तो एफडीआई आने से आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगा। एफडीआई गिव्स एक्सेस फॉरेन मार्केट्स फॉर लोकल कंपनीज। अब देखिए लोकल कंपनीज के लिए भी फॉरेन मार्केट में जाना अब संभव हो पाएगा, दैट बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स। दिस हेल्प्स एक्सपैंड देयर कस्टमर बेस एंड सेल्स। Technology transfer requirements and performance benchmarks can be imposed on foreign investors to maximize technology spillovers and beneficial impacts. Next slide. तो तो ये हमने पढ़ा है होस्ट कंट्रीज के लिए। अब हम लोग देखेंगे होम कंट्रीज को क्या क्या उसका impact है FDI का on home countries. So what are the impact of FDIs on the home country? Now, number one is costs and benefit of FDI for host countries have been stated below. Sorry, होम कंट्री होगा, यहाँ पे होम कंट्री लिख दीजिएगा, होस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होम कंट्रीज होगा। पहला क्या है, नाउ हियर प्लीज मार्क माय वर्ड्स, for this home country I am doing here in the first line the cost and benefit FDI for host country नहीं होगा, यहाँ पे home होगा, host लिखा है ना वहां पे home होगा। Can you please change it?
ये जो होम कंट्री है ना, इसका जो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ द स्लाइड, कैन वी चेंज इट? Yes, you have done. For home country, yes. So costs and benefits of FDI for home countries have been stated. Now companies gain higher profits and returns from their FDI projects. अब देखिए, हायर प्रॉफिट्स मिलता है एंड रिटर्न्स भी। अब आपने पैसा तो लगा दिया भाई, पैसा लगा दिया, अब जो प्रोजेक्ट पे लगाया है तो आपको प्रॉफिट आ रहा है बहुत ज्यादा, रिटर्न्स आ रहा है, बट प्रॉफिट्स रिपैट्रिएटेड बैक होम escape host country taxes resulting in loss of pot। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिपैट्रिएटेड मतलब क्या हो गया, रेमिटेंस समझ लीजिए, आपने वहां पे किसी पर्टिकुलर देश में पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, रिटर्न्स बहुत अच्छा कमाया, अब वहां से उस पैसे को आप बैक लाइएगा अपने देश में, लेकिन आप तो वहां पे टैक्स दे चुके हैं ना, तो अपना अपना देश में तो आप टैक्स नहीं दे, आपको नहीं लगेगा, तो बैक होम इसके। अच्छा, दूसरा बात है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं, एफडीआई लगाए हैं, पैसा लगाए हैं, तो वहां पे टैक्स का रूल कुछ और हो सकता है, हमारे देश में कुछ और हो सकता है, वहां पे हो सकता है कम हो, वहां पे हो सकता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट टैक्स फ्री हो मे बी, सो आप वहां भी बच गए और यहाँ तो लगेगा नहीं, तो देख लीजिए सरकार के लिए लॉस है ये। But profits repatriated back home escape host country taxes, resulting in loss of potential tax revenue। देख लीजिए, टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो गया सरकार को। FDI provides access to cheaper resources। FDI provides access to cheaper resources, lower cost production locations and new markets for growth। तो क्या है, लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का जो कॉस्टिंग पार्ट है वो आपको लो पड़ रहा है, लोकेशन एंड न्यू मार्केट्स फॉर ग्रोथ, बट इट आल्सो एक्सपोजेस फर्म्स टू रिस्क इन फॉरेन। अब रिस्क ये सब हालांकि छोटा छोटा बात है कि आप कहीं भी जाइएगा बिजनेस करने तो रिस्क तो है ही भाई, तो वो भी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो ये रिस्क कोई बड़ा, जब जब रिटर्न इतना आ रहा है तो रिस्क ये नेग्लिजिबल रिस्क है। एनीवे, FDI enables international expansion and upgrading of skill technology। अब आपको इंटरनेशनल, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, तो अगल बगल में कोई शर्मा जी वर्मा जी हैं, हाँ गुप्ता जी हैं, तो उनको जो जानकारी है वही जानकारी से आपको एडवांस में जो नॉलेज मिल रहा है उन्हीं से। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल के लोगों के साथ काम करते हैं, मिस्टर जॉन, मिस्टर मूडी और मिस्टर ब्रांडी के साथ में, तब आपका नॉलेज स्किल बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो एकदम एक्सपर्ट लोग को हायर करते हैं और उनके साथ में आपका ट्रेनिंग या उसके साथ में काम करते हैं, तो एक अलग ही लेवल का पर्सनैलिटी, अलग ही लेवल का नॉलेज आपके पास आता है। तो व्हाट दे आर सेइंग दैट एफडीआई enables इंटरनेशनल एक्सपेंशन and upgrading of skill and technology। However, it can also result in job losses at home in labor intensive sector। अब देखिए हमारे देश में तो ऐसा है कि लेबर इंटेंसिव, अभी आप देखते होंगे मानगो में, आदितपुर में, साक्षी में, सुबह सुबह ढेर सारे लेबर वहां पे खड़े हो जाते हैं, मॉर्निंग में 8 बजे जाइए और उसको लेबर को बात कीजिए, वहां पे उठा के ले आइए। तो व्हाट आर दे आर टोटली अनस्किल्ड लेबर, दे डोंट नो एनीथिंग। यू आस्क देम कि भैया ये गिट्टी उठा के यहाँ से वहां रखना है, वही काम जानता है, लेकिन खाना खाने के लिए तो सबको कमाना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, कंट्री लेबर इंटेंसिव, अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो इस तरह का जो स्किल एंड टेक्नोलॉजी जो आ रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, या अभी अभी तो एक आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, या रोबोटिक काम हो रहा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से हो रहा है, तो इतना सारा जो चीज आ गया तो लोगों को रोजगार घटेगा, जो मैनुअल काम है वो भी सारा कर दे रहा है वही। तो जो लेबर इंटेंसिव जगह है जैसे हम लोगों का देश है, तो वहां बहुत दिक्कत है भाई, जॉब का मारा मारी हो जाएगा, जो भी कुछ काम मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है होम कंट्रीज के। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आउटफ्लोज टू होस्ट कंट्रीज थ्रू एफडीआई। अब देखिए रिस्क है भाई, आप जो है अपना टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं कहीं दूसरा देश में। आप मान लीजिए आपका बिजनेस है यहाँ से, लेट से ऑस्ट्रेलिया में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके पास कुछ तगड़ा टेक्नोलॉजी है, अब आप टेक्नोलॉजी को वहां जाकर के शेयर करते हैं, अपना वहां भी कोई ज्वाइंट वेंचर है उसके साथ में। अब वो क्या है, मान लीजिए देश का आदमी है तो थोड़ा सा उसमें होता है कि भाई अपना देश का बात है, एक पैट्रियोटिज्म होता है, लेकिन कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है
हाँ जी, जो कि बहुत अनोखा है, बहुत कम लोगों के पास है, या ऐसा कोई स्किल या नॉलेज है जो कम लोगों के पास है, तो उसका जो है टेक्नोलॉजी का जो है मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसका लीक होने का चांस रहता है, लीकेज होने का। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आउटफ्लो, तो इसमें रिस्क है टू होस्ट कंट्रीज थ्रू एफडीआई, एफडीआई के थ्रू ये भी एक रिस्क है। अगला पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनीज गेन हायर प्रॉफिट्स, multinational companies gain higher profits from utilizing advantages like intellectual property and brand recognition in foreign markets। अब अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया है, कल ही क्लास में लिया था मैंने, क्या सब है, कल की परसों मैंने क्लास में बताया था। जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, और क्या सब है, रॉयल्टी, सॉरी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ये सब सारा आपका या कोई टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल एक्सपर्टीज, दीज आर योर intellectual property and brand recognition in foreign markets। Now FDI allows firms to expand production and sales to a larger global customer base, achieving economies of scale। अब आप क्या है, लार्जर ग्लोबल कस्टमर बेस के पास जब अपना प्रोडक्ट ले जाइएगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या है, मान लीजिए 5,000 यूनिट बनाने के लिए जितना सामान लगेगा, जितना बिजली लगेगा, जितना फिक्स कॉस्ट लगेगा, वही अगर आप 5 लाख बनाते हैं, 5,000 यूनिट के बदले 5 लाख यूनिट बनाते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उसमें कॉस्टिंग कम लगेगा, बजाय इसके कि 5,000 यूनिट, 5,000 में कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग यही हुआ, लेमैन्स की भाषा में मैंने बता दिया आपको। नाउ एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड लोअर कॉस्ट लोकेशंस एनहांस competitiveness of home country companies। देखिए, एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया, जो कोल है, ठीक है जी, डायमंड है, ये पानी है, जंगल है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक्सेस टू नेचुरल, वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको लोअर कॉस्ट में जो है सो वो अक्वायर कर सकता है, एनहांस कंपनी फ्रॉम होम कंट्री कंपनीज, और उससे क्या हो जाएगा, कंपिटिटिवनेस में एनहांसमेंट हो जाएगा। एफडीआई फोर्सेज डोमेस्टिक फर्म्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी थ्रू कंपिटिटिव प्रेशर। एफडीआई फोर्सेज डोमेस्टिक, अब एफडीआई क्या करता है, फोर्स जो घरेलू कंपनी है, तो उसको भी भाई आप भी अपना एफिशिएंसी बढ़ाइए, आप भी अपना क्वालिटी बढ़ाइए, आप भी अपना लेवल को बढ़ाइए। तो इस तरह का कंपटीशन आ जाता है जो कि प्रेशर क्रिएट करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब अपना सिलेबस में ही है, एक और टॉपिक है, मैं बताता हूं आपको क्या है। In our syllabus, there is factors affecting foreign investment decisions I have completed. Now, impact of FDI on home and host countries that I have discussed, I have completed. Now, the next is types and impacts for foreign collaboration। अब जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइप्स एंड मोटिव्स फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन है। तो अब देखते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। देखिए, कोलैबोरेशन मतलब क्या हो गया, किसी के साथ आप कोलैबोरेट कीजिए, ठीक है जी, कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए या कुछ प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग तो उसको मार्केटिंग करने के लिए आप कोलैबोरेट कीजिए, सेल्स करने के लिए कीजिए, या प्रोडक्ट को बनाने के लिए कीजिए दूसरे कंपनी के साथ। सो बेसिकली 4 तरह का ये कोलैबोरेशन होता है। पहला कोलैबोरेशन है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशंस। इन एग्जाम इट माइट बी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेशन एंड what are the types of foreign collaborations। So number one is technical collaboration। So what is technical collaboration? This collaboration is undertaken to provide technical know-how। As I discussed earlier, know-how मैंने बहुत बार बोला है, know-how मतलब क्या, नो मतलब जानना, हाउ मतलब कैसे। मान लीजिए लैपटॉप बनाया आपने, तो लैपटॉप कैसे बनाया, उसका जो टेक्नोलॉजी है क्या है, आपने एटॉम बम बनाया तो उसका क्या फॉर्मूला है, वो एक अलग डायरेक्शन में हो गया।
कोई कार, एक पर्टिकुलर कार बनाया, नैनो बनाया, तो नैनो का क्या टेक्निकल नाउ है, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया, क्या नॉलेज लगाया, दैट इज व्हाट टेक्निकल. सो दिस टेक्निकल नो हाउ विल कम अंडर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इसी का तो है महत्व, टेक्निकल नो हाउ. सो दिस कोलैबोरेशन इज अंडरटेकन टू प्रोवाइड टेक्निकल नो हाउ टू द लेस डेवलप्ड कंट्री. ठीक है. अब जो लेस डेवलप कंट्री है उसको तो भैया नो टेक्निकल नो हाउ मिल जा रहा है, उसको ज्ञान मिल जा रहा है, टेक्नोलॉजी मिल जा रहा है. दिस हेल्प्स द कंट्री टू डेवलप इट्स कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स इन दैट डोमेन. जिस डोमेन में आपका बिजनेस है उस, जब देखिए बहुत सारा कंट्री है जिसको कि इंडिया ने अपना टेक्नोलॉजी दिया है. जब हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होता है, बिजनेस का एग्रीमेंट होता है, आप देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर का G20 समिट या और भी कुछ इस तरह का होता है, G5 समिट. तो इसमें वहाँ के लोग आते हैं, यहाँ के लोग आते हैं, एग्रीमेंट होता है कि भैया हम अपना जो है नॉलेज आपको, मान लीजिए वाटर, इजराइल के साथ अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू आए थे एक बार. तो इजराइल में क्या है, पानी बहुत खारा है, समुद्र का पानी है और उसको उन लोगों ने पीने लायक बना दिया. समुद्र का पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन उसको, उस पानी को उन लोगों ने ऐसा बना दिया है कि उस पानी को हर तरह से यूज किया जा सकता है और बहुत ही अच्छा पानी है. तो वाटर को कैसे प्यूरिफाई करना है, समुद्र के पानी को, तो वो टेक्नोलॉजी दैट मिस्टर नेतन्याहू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजराइल, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर, he transferred that technology to Mr. Modi. And in India also there are lot many seas are there जहाँ का कि पानी गंदा है या पीने लायक नहीं है, तो उसको कैसे प्यूरिफाई करना है वो टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर करेंगे, या उसका कुछ एग्रीमेंट हुआ था. तो ये क्या हो गया, हमारे पास नहीं है, हमने उनसे टेक्नोलॉजी लिया. दिस हेल्प द कंट्री टू डेवलप इट्स कैपेबिलिटीज एंड स्किल इन दैट डोमेन. तो जो जिस काम के लिए, उस काम के लिए स्किल एंड कैपेबिलिटीज को इंक्रीज हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा. दिस कोलैबोरेशन आल्सो हेल्प्स इन अचीविंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट. कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है सो कर पाइएगा आप इस तरह का टेक्निकल कोलैबोरेशन. नेक्स्ट कोलैबोरेशन इज व्हाट, मार्केटिंग कोलैबोरेशन. अब भैया प्रोडक्ट तो बना लिया हमने, अब प्रोडक्ट को अब फिर मार्केटिंग तो करना है. तो मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारा, आजकल देखिएगा आप लोग, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होता है. फॉर एग्जांपल घर में कुछ करना है, या मान लीजिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, अपने से आप कीजिएगा, तो आपको जैसे मान लीजिए छोटा सा बर्थडे ही सेलिब्रेट करना है, तो फूल वाले को अलग जाके पकड़ना होगा, बैलून वाले को अलग, सजाने वाले को अलग, केक वाले को अलग, हाँ जी, कुछ और काम है, सर्व करने वाले को अलग, खाना बनाने. अगर आपने एक पार्टी को दे दिया इवेंट मैनेजर को कि आप सारा कुछ करो, हमको पार्टी करना है, बच्चे का बर्थडे है, तो क्या करेगा, वो कर देगा. तो उसी तरह से हमने जब प्रोडक्ट बना लिया, तो देर आर मेनी कंपनीज, दे आर स्पेशलिस्ट इन डूइंग मेकिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड फॉर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट. आपने बहुत सारा प्रोडक्ट देखा होगा कि प्रोड्यूस्ड एट चाइना, मैन्युफैक्चर्ड एट चाइना, एंड इट हैज बीन ब्रॉट, इंपोर्टेड बाय फलाना कंपनी, XYZ कंपनी, एंड मार्केटेड बाय फलाना कंपनी, XYZ कंपनी. आपने प्रोडक्ट के पीछे देखिए, कोई उसमें लिखा रहता है मार्केटेड बाय XYZ कंपनी एंड प्रोड्यूस्ड एट फलाना देश, इस तरह से लिखा रहता है. सो दिस कोलैबोरेशन क्रिएट्स एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द डोमेस्टिक कंट्री. ये क्या करता है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी. अब क्या करता है, एक देश ने बना लिया सामान, अब उसको बेचना है, बेचने के लिए उसको एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्टिंग कंपनीज है जो कि आपका सारा सामान को एक्सपोर्ट कर देगी और मार्केटिंग कर देगी. इंटरनेशनल एंटिटी हेल्प्स इन मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री इन ग्लोबल मार्केट्स. डोमेस्टिक कंट्री का जो ये है, जिस कंट्री में बना है सामान, उस सामान को ग्लोबल मार्केट तक आपका सामान को पहुंचा देगा. ग्लोबली उसका ऐसा स्ट्रेटजी रहेगा कि आपको ग्लोबली आपका सामान का मार्केटिंग कर देगा. दिस ओपन्स अप मेनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक मार्केट. अब आपका वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा है, मान लीजिए कोई सामान आपका USA में एक्सपोर्ट हो रहा है, और वहां वो पर्टिकुलर आदमी, जैसे मान लीजिए शहद है, डाबर का शहद या पतंजलि का शहद, सपोज बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, हाँ जी, और उसको USA का कोई कस्टमर यूज किया है, इंपोर्ट करके, USA में आपने एक्सपोर्ट किया और वहां तो USA के लिए इंपोर्ट हो गया, तो इंपोर्टेड आइटम को उसने यूज किया, उसको बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगा, बहुत हाइजीनिक है, बहुत
बहुत माने अच्छा है वो। अगर वो इंडिया आता है तो इंडिया में खोजेगा किसी स्टोर में जाके पतंजलि का मुझे वो दीजिए, घी दीजिए या शहद दीजिए, ठीक है जी, हनी दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, दिस ओपन्स अप मेनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक कंट्री। और वो हो सकता है संजोग से बिजनेसमैन भी हो तो यहाँ पे आकर डायरेक्ट आपसे डील कर लेगा कि भाई मेरा बिजनेस है, वहाँ पे रिटेल शॉप है, आप जो है मुझे डायरेक्ट इंपोर्ट करें या यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें, मैं आपसे इंपोर्ट कर लूंगा। सो दिस इज व्हाट marketing collaboration. Now again I am repeating that marketing, this collaboration strategies are very 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 much important, so please do not ignore it. Next slide. The next thing is financial collaboration and compulsory sorry, consultancy collaboration. Let us see what is financial collaboration. Now financial collaboration means foreign investment flowing into the domestic country in the form of capital for the domestic country company. क्या होता है जी मीनिंग? हुआ मीनिंग दियर बाय दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इनटू द डोमेस्टिक कंट्री, आपके कंट्री में आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल के रूप में, डोमेस्टिक मार्केट में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉरेन फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। ये सिंपल सा है, फंड आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉरेन कोलैबोरेशन। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, दैट इज कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन। Now, consultancy collaboration includes providing consultant services to the international country. देखिए आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं आप, अब मैं बता रहा हूं आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, एक वो हो गया, एक कंपनी थी यहाँ पर आपको जुबली पार्क के बगल में था, उसका नाम था टाटा का ही, जो टैगोर स्कूल के बगल में है, द नेम ऑफ द कंपनी इज टाटा कंसल्टिंग, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ा सा बिल्डिंग है, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी। सो दैट इज वन कंपनी, अनदर इज टाटा कंसल्टेंसी। So likewise so many companies are there. So what do? They win a project abroad, and what do? Let's say in Nigeria they want to develop the any Nigeria or any Kenya, let's say underdeveloped Kenya. In Kenya, they do not have a software for railway, ticket booking system, computerized ticket booking system. For understanding, let us assume. So Tata TC has TCS has won that bid from Kenya. So what do? Just a minute. I'm taking 1 minute break. After 1 minute, I will come. Yes. These consultants, so what do? What would they be doing? They would be going to their skilled people, engineers will be visiting to that Kenya, and they will be implementing, they will be developing the software. So
In that way, the consultancy collaboration is done. Consultancy collaboration includes providing consultant services to the international country. These could be in the areas of finance, marketing, human resources, finance, and accounting, etc. These collaborations can take the form of mergers, acquisitions, joint ventures and amalgamations. ये चार तरीके से ये कोलैबोरेशन हो सकता है कंसल्टेंट। तो चार तरह का कौन कौन सा जी कोलैबोरेशन है, ये एकदम पूरा रट लीजिए इसको। टेक्निकल कोलैबोरेशन एक, so types and we are studying types and impacts of foreign collaboration। मैंने एक एक कोलैबोरेशन का इम्पैक्ट बता दिया। So number one is technical collaboration, number two is marketing collaboration, number three is financial collaboration, and number four is consultancy collaboration. Consultancy collaboration can be done in the form of mergers, acquisitions, joint ventures and amalgamations. Let us see one example. Tata Global Beverage is a company, okay? So Tata Global Beverage collaborated with Starbucks. This was a strategic move as it opened many new business opportunities for Tata. इसने किसके साथ कोलैबोरेट किया? स्टारबक्स के साथ में। अब ये जो कोलैबोरेट हुआ तो उससे क्या हो गया जी, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी टाटा के लिए खुल गया। टाटा ग्रुप एंड स्टारबक्स ऑल्सो शेयर द सेम बिजनेस वैल्यूज which relate to commitment to the community। टाटा का क्या है, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है, तो कमिटमेंट टू द सोसाइटी, कमिटमेंट टू द कम्युनिटी। स्टारबक्स का भी वही है। तो वैल्यूज दोनों का देखिए, वैल्यूज दोनों का सेम है, तो इसीलिए ये जो कोलैबोरेशन हुआ उसमें वो कोलैबोरेशन ज्यादा सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। अब ये भी आ सकता है एग्जाम में कि भाई कोलैबोरेशन तो हमने पढ़ लिया, कितना तरह का कोलैबोरेशन होता है वो भी जान लिया, अब ये बताइए कि एडवांटेजेस, ये सब लिख दीजिएगा ना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 पेज में ये सब मिला जुला के लिखिएगा, 10 मार्क्स आपको पूरा आ जाएगा, कोई नहीं रोकेगा देने से, ठीक है। लेकिन होना चाहिए, ये सब वर्ड होना चाहिए, ये सब चीज। ये नहीं कि आएगा कोलैबोरेशन और कोलैबोरेशन का मतलब कुछ और अपने मन से लिखिएगा तब मुश्किल है। So let us see what are the advantages of foreign collaboration. Now it helps in achieving financial growth for both collaborating parties. So collaborated parties and collaborating parties, two parties are there, collaborated and collaborating. So it helps in achieving financial growth, दोनों पार्टी का financial growth होगा। The domestic company stands to achieve a better reputation and monetary gain। और डोमेस्टिक कंपनी को जो है सो क्या हो गया, रेपुटेशन भी होता है और मॉनेटरी गेन भी। आप देखिए, मान लीजिए किसी अमेरिकन कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन हो रहा है तो आपका ऑटोमेटिक रेपुटेशन उस कंपनी का बढ़ जाएगा, उसमें काम करने वाले लोगों का। अब देखिए टाटा टिमकन, अभी मैं एग्जांपल, टाटा टिमकन एक कंपनी था, बाद में हो गया टिमकन, खाली टिमकन हो गया वो। तो पहले तो टाटा टिमकन था, तो टिमकन से हो गया टाटा टिमकन हो गया। वो क्या था, कोलैबोरेशन ही था, वो दो कंपनी मिलके बना हुआ था। अब बिग प्रोजेक्ट, तो उससे क्या होता है, दोनों कंपनी का वो होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है और रेपुटेशन बढ़ता है। मॉनेटरी गेन तो दैट इज बट ऑब्वियस। A big project might help the domestic country to make progress by generating employment in the country. So big कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है डोमेस्टिक कंट्री में, तो उससे क्या होता है, कंट्री का प्रोग्रेस होता है, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी आता है, जो और उसका सब्सिडरी जो उससे अलाइड बिजनेस है उसको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता है, बिजनेस खुलता है, नया नया काम मिलता है। फॉरेन कोलैबोरेशंस हेल्प इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मतलब जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज का उतना करिए, दैट इज व्हाट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज। सो फॉरेन कोलैबोरेशंस हेल्प
in the optimum utilization of resources. Now, international countries come close together with these collaborations. अब इस कोलैबोरेशन से क्या होता है, दो इंटरनेशनल कंपनी एक साथ में ज्यादा क्लोज हुआ तो एक और नया आइडिया आता है बिजनेस का। फिर जब साथ में लोग काम करता है तो ज्यादा नजदीकी होता है ना, ज्यादा नजदीकी होने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। दे अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ बेटर वे। ओके, सो दे कैन डिस्कस, दे कैन डेवलप, दे कैन वर्क टुगेदर एंड again they can build up a new company. So and as per that, your country will be benefited, your economy will get boost up, the employment will be generated. So क्या हो गया, international countries come close together with these collaborations. Next is foreign collaboration brings the economies closer. अब देखिए, अब दो कंट्री है, मान लीजिए आपका एक, आप इंडिया के हैं, आपका जो इकोनॉमी है कुछ, आपके यहाँ का इकोनॉमी का रूल रेगुलेशन अलग है, इकोनॉमी का हाल अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। और लेट्स से फॉर ऑस्ट्रेलिया का अलग है, नियम कानून अलग है, वहाँ का इकोनॉमी का हाल अलग है। लेकिन दोनों, अगर दो लोग कोलैबोरेट करते हैं, दो कंपनियां कोलैबोरेट करती हैं, तो यहाँ का डिसीजन का असर, अगर वो भले वो लिस्टेड है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के इकोनॉमी पे, अगर बड़ी कंपनी है रिलायंस, अगर आज की डेट में किसी के साथ एसोसिएट होती है, तो इंडिया में इम्पैक्ट जो पड़ेगा उसका, उसका शेयर का भाव का इम्पैक्ट जो दूसरे कंट्री में जो कंपनी है इसके साथ कोलैबोरेटेड कंपनी, उस पर भी पड़ेगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो फॉरेन कोलैबोरेशंस ब्रिंग द इकोनॉमीज क्लोजर। तो इकोनॉमी क्लोजर हो गया अपने आप, जब वहां का मार्केट पे पड़ रहा है तो वहां का इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। सो ऑटोमेटिक इट इज दे आर बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। सो दिस रिड्यूसेस द डिस्पैरिटीज बिटवीन द कंट्रीज। अब इससे क्या हुआ, दो कंट्री के बीच जो डिस्पैरिटी है, ठीक है, डिफरेंसेज है कंट्रीज, देयर बाय, तो ये मतलब ये कम हो जाता है। देयर बाय क्रिएटिंग फेवरेबल एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है उससे, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, तो एक के साथ आपने काम किया है, जानते हैं, समझते हैं, उसका कल्चर को समझते हैं, वैल्यूज को समझते हैं, सब समझने लग जाते हैं, तो एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो उससे ज्यादा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आएगा। When one country comes in contact with develops cultural nation, देखिए, when one country comes in contact with another country develops cultural relation। अब क्या, कल्चरल रिलेशन भी उससे डेवलप होता है दो कंट्री के बीच में। Such favorable international relations results into global integrity and peace। अब कल्चरल रिलेशंस बना तो उससे क्या हो गया, ग्लोबल तौर पे, एक वैश्विक तौर पे ग्लोबली जो है एक इंटीग्रिटी एंड पीस का माहौल बना। इंटीग्रिटी एंड एकता एंड पीस, मतलब शांति का माहौल। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए जी, हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। द लास्ट टॉपिक इज control mechanism in international business. This is the last topic. After covering this, our unit 3 syllabus of international business will be completed. So today let us see control mechanism in international business. This is the last topic of unit 3. Please mind it. Now control mechanism in international business. There are 3 main levels at which control can be implemented. अब देखिए, इसका 3 तरीका है, ठीक है जी। एक मिनट। Control mechanism in international, there are 3 main levels at which control can be implemented and managed in an international business. These 3 key levels of control are as follows. Number 1 is strategic level, number 2 is organizational level and number 3 is operational level। देखिए, ये तीनों लेवल में, स्ट्रेटेजिक में, ऑपरेशनल में एंड ऑपरेशनल में खास करके बहुत बड़ा वास्ट दिया है, लेकिन उतना वास्ट मैं नहीं गया, मैंने उसको इन ब्रीफ, इन शॉर्ट उसको लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप
लिख पाइएगा, जितना उतना ज्यादा समझने से फिर दिमाग से आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको छोटे में लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मैकेनिज्म क्या बोलता है। देखिए, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज इंटेंडेड बोथ हाउ वेल strategic control is intended both how well an international business formulates strategy and how well it goes about implementing. सबसे पहला है तो भाई इसमें आप कि आप कैसे इंटरनेशनल बिजनेस का स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, यही है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इन इंटरनेशनल बिजनेस। Thus, strategic control focuses on how well the firm defines and maintains its desired strategic alignment with its environment and how effectively it is setting and achieving its strategic goals। देखिए, strategic goals मतलब क्या होता है? एक होता है वन वे, एक होता है टू वे, एक होता है स्ट्रेटेजिक वे। स्ट्रेटेजिक मतलब होता है कि मेरा काम हो जाए, अच्छे से हो जाए और आपका भी काम हो जाए, मेरा काम होगा साथ साथ में, ऐसा स्ट्रेटजी है कि हम लोगों का विन विन सिचुएशन, मतलब विन विन सिचुएशन मतलब क्या हुआ, मेरा भी विन हुआ और आपका भी विन हुआ। तो ऐसा स्ट्रेटजी बनाना कि आपका गोल जो भी है, ऑब्जेक्टिव जो भी है, डिजायर्ड गोल है, वो आपका फुलफिल हो जाए और जो है स्ट्रेटेजिक गोल्स जो है सो फुलफिल हो जाए, और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज। Now, strategic control also play a major role in the decisions firms make about foreign market entry and expansion, and most critical aspect of strategic control is control of an international firm's financial resources। देखिए भाई, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे पहला है कि ऐसा आपको सबसे कोई भी कुछ भी काम करना चाहिए, पैसा चाहिए। आप एक छोटा सा काम घर से करने निकलिए तो पैसा चाहिए, लेकिन यहाँ तो लेकिन क्या है, डेवलप्ड नेशन में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और उनको हमेशा न्यू एवेन्यूज का खोज रहता है कि कहाँ पे पैसा लगाया जाए ताकि वो पैसा बढ़े। ठीक है जी। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑल्सो प्ले, तो लेकिन उसको क्या है कि वो एवेन्यूज खोजना पड़ता है, बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारे लोग भी और कंपनी भी है जिसको ये, तो प्ले अ मेजर रोल इन द डिसीजंस फर्म्स मेक अबाउट फॉरेन मार्केट एंट्री। तो स्ट्रेटेजी कंट्रोल क्या होता है, मेजर डिसीजन एक प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है इन डिसीजन मेकिंग अबाउट द फॉरेन मार्केट एंट्री एंड एक्सपेंशन, और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। एंड मोस्ट जो क्रिटिकल एस्पेक्ट वो ये है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज कंट्रोल ऑफ एन इंटरनेशनल फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंस जो आया है, मान लीजिए एफडीआई से या जहां से भी आप पैसा तो मंगवा लिए, आ गया है पैसा, या आपका बिजनेस है, कोलैबोरेट करके या जॉइंट वेंचर करके या इन्वेस्टमेंट करवा के कहीं से पैसा मंगवा लिए हैं, लेकिन पैसा को कंट्रोल करना या इफेक्टिवली यूज करना बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजी कंट्रोल इज सेइंग। नेक्स्ट स्लाइड मैम। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, this I have discussed. I've just discussed. Let me read it out once again. Strategic control is intended both how well an international business formulates a strategy and how well it goes about implementing it. कितना अच्छी तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं और कितना अच्छी तरीके से आप इंप्लीमेंट करते हैं, वही स्ट्रेटजी कंट्रोल के तहत किया जाता है। Thus, strategy control focuses on how well the firm defines and maintains its desired strategic alignment with its environment and how effectively it is setting up and achieving its target goals। टारगेट गोल्स को आप अचीव करने के लिए कैसे आप इफेक्टिवली गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं, वही बताया गया स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में। दूसरा है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द डिसीजंस फर्म्स मेक आउट फॉर फॉरेन मार्केट एंट्री। फॉरेन मार्केट एंट्री के लिए, एक्सपेंशन के लिए भी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एक मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट जानते हैं इसका क्या है, वो ये है कि आपने जो पैसा मंगवाया है
जिस भी थ्रू से मंगवाया है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के थ्रू मंगवाया है, उसको इंटरनेशनल फर्म्स कंट्रोल ऑफ एन इंटरनेशनल फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करना, दैट इज द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Second is organizational control. So what is organizational control? Organizational control focuses on the design of the organization itself. ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन के बारे में मैंने डिटेल्स में पीपीटी बना के पढ़ाया था, आपको बताया हूं उसमें कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, सीईओ है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, एचआर है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, डिफरेंट फंक्शंस है, सेल्स है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये है. तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल फोकसेज ऑन द डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल. तो डिजाइन आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन itself. There are many different forms of organizational designs in an international firm can use. So बहुत सारा है इंटरनेट, वो मैंने डिस्कस किया था एक क्लास में. बहुत सारा डिजाइन है इंटरनेशनल फॉर्म का और उसको यूज कर सकती है. बट सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर डिजाइन डज नॉट नेसेसरी एंड द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन प्रोसेस. लेकिन एक डिजाइन आपने सेलेक्ट कर लिया और सोचेंगे उसी से डिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल का कंट्रोल हो जाए. मान लीजिए सीईओ को रिपोर्ट करता है मार्केटिंग हेड, सेल्स हेड, एचआर हेड, तो हो सकता है कि इसको आप फिर से ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट काम नहीं कर रहा है, तो इसको आप किसी और फॉर्मेट में ला सकते हैं. सीईओ के नीचे कोई और दे सकते हैं आप, एक और मैनेजर या एक और कुछ ऐसा पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसको रिपोर्ट करेगा, वहां से डायरेक्ट सीईओ को रिपोर्ट होगा. जो ऑल फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, एचआर फंक्शन, ऑपरेशन फंक्शन, सेल्स फंक्शन, तो ये जो एक सेलेक्ट कर लिया तो वो वही हमेशा काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है. बट सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर डिजाइन डज नॉट नेसेसरली एंड द organization design process. Now international firm generally use one or more of three types of organizational control system. तो ऑर्गेनाइजेशनल फर्म्स क्या है, एक या दो या तीन तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना सकती है कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका मेन कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है. बिजनेस फैलाना बहुत आसान है, लेकिन बिजनेस को कंट्रोल भी करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Our last, this control is the control of control aspect in international business, or control mechanism of international business is operations control. So the third level of control in an international firm is operations control. Operations मतलब क्या हुआ जी, operations मतलब हुआ कि जो ऑपरेशन, जो आपका जो बिजनेस का जो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, जो चल रहा है, मान लीजिए जो मार्केटिंग डिवीजन है, बिजनेस लॉजिस्टिक डिवीजन है, सेल्स है, ये सब हो गया. So operations controls focuses specifically on operating processes and systems within both the firm and its subsidiaries and operating units. Thus, a firm needs an operation control system within each business unit and within each country or market in which it operates. देखिए बिजनेस क्या है, बहुत सारा देश में फैला हुआ है, बहुत सारा देश में बिजनेस है. अब उस देश में भी अलग अलग यूनिट है, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग उसको हेड कर रहे हैं बिजनेस को. तो thus a firm needs an operation control system within each business unit and within each country or market in which it operates. ठीक है, तो ऑपरेशन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि जो कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो है ईच बिजनेस यूनिट में एंड ईच फर्म में, ईच कंपनी में एंड ईच कंट्री में उसका कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से होना चाहिए. सो in the last I have discussed what I have discussed control mechanism in international business. What are the three mechanism? The three mechanisms are strategic control mechanism in international business, organizational mechanism in control mechanism in international business, and operational control mechanisms in international business. And in today's slides, the entire PPT I have covered. What else I have covered? I have covered the
evaluation and selection, no, sorry, country evaluation and selection in international business. Then I have also covered factors affecting foreign investment decisions. What are the factors that are affecting the foreign investment decisions? Then I have covered impact of FDI on home country and host countries. I have covered it in details. I have made you to understand each and every nuts and bolts of the topic. Then types and motives for foreign collaborations, I have also explained. Then at last, the last topic that I have covered is control mechanisms in international business. And with this discussion, our unit 3 is completed today. Tomorrow we will start unit 4. Okay, so you go through the slides. Please go through the slides. Please understand. Please read. Please make few notes. Whatever I have said that these are important, please focus on those points. Okay, and listen my this lecture for 2 to 3 times so that you can do very well in exam. Okay, thank you for today's session.